مارننگ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا بریفنگ میں کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بامعنی مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے معاملات امریکہ طے نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ایک سوال پر ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کو اس وقت بدترین مہنگائی کا سامنا ہے۔ پاکستان کو پائیدار معاشی راستے پر ڈالنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، غبارے کے بعد مشتبہ جاسوس کبوتر نے بھی بھارت کی نیندیں اڑا دیں۔ بھارتی پولیس کے مطابق اڑیسہ میں بھارتی ماہی گیروں کو یہ کبوتر کشتی پر ملا تھا، جس کو انہوں نے میرین پولیس کے حوالے کر دیا۔ کبوتر کی ٹانگ پر کیمرہ اور الیکٹرانک چپ نصب تھی، جس کا فرانزک کروایا جائے گا۔ بھارتی پولیس نے کبوتر کو جاسوسی میں استعمال کیے جانے کا شبہ بھی ظاہر کر دیا۔ جرمنی میں چرچ پر فائرنگ سے 7 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد حملہ آور فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ گراس بار ہوسٹل ڈسٹرکٹ میں چرچ میں کی گئی فائرنگ کا مقصد معلوم نہیں ہو سکا۔ ہیمبرگ کے وزیر داخلہ نے ٹویٹر پر بیان میں شہریوں سے گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کا سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ پر نواز شریف کے خلاف سازش کا حصہ بننے کا الزام۔ کہتی ہیں آصف سعید کھوسہ کے بطور چیف جسٹس توسیع کے لیے نواز شریف سے رابطہ کیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بیان اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے الزامات سے انکار نہیں کیا، بلکہ اعتراف کیا کہ الزامات سچے ہیں، لیکن میں اکیلا نہیں تھا۔ امید ہے ادارہ اب ان کا احتساب کرے گا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ لاہور میں پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار، اور کہا گیا کہ واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دفعہ 144 ختم ہو گئی، دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے، کپتان کا اعلان۔ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، عوام ساتھ ہیں، سب سے بات کروں گا سوائے چوروں کے۔ کبھی آرمی چیف یا شہباز شریف کو بات کرنے کی دعوت نہیں دی۔ سوچا تھا نیا آرمی چیف آئے گا تو تبدیلی آئے گی، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ سختیاں بڑھ گئی ہیں۔ عمران خان کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے نااہل کریں یا گرفتار، ہم میچ جیت چکے ہیں۔ اور ناظرین، الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ وزارت خزانہ حکام کا اجلاس۔ انتخابات پر اخراجات کی تفصیلات وزارت خزانہ کو دے دی گئی۔ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے لیے 20 ارب کے فنڈز فوری طور پر درکار ہیں۔ جنرل الیکشن ہوں تو 65 ارب روپے کے فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ پی الیکشن کی تاریخ گورنر سے میٹنگ کے بعد دی جائے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ و خزانہ حکام سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس کا مقصد انتخابات کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی کی فراہمی یقینی بنانا تھی۔ سیکرٹری خزانہ کی الیکشن کمیشن کو مجموعی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ سیکرٹری خزانہ کو بتایا گیا الیکشن کے انعقاد کے لیے 65 ارب کے فنڈز درکار، جبکہ پنجاب اور کے پی کے لیے 20 ارب فنڈز کی فوری ضرورت ہے، جس میں ابھی تک کمیشن کو صرف 5 ارب دیے گئے، 15 ارب مزید درکار ہیں۔ سیکرٹری خزانہ نے بتایا کہ مطلوبہ فنڈز مہیا کرنا وزارت خزانہ کے لیے مشکل ہے۔ جواب وزارت خزانہ وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد ملے گا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے الیکشن سیکیورٹی کے حوالے سے کمیشن کو آگاہ کیا۔ اعلامیہ کے مطابق سیکرٹری داخلہ فوج رینجر سے رابطہ کر کے درکار نفری کا بندوبست کر کے کمیشن کو آگاہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آج آئی بی، آئی ایس سی اور دونوں صوبوں کی سی ٹی ڈی سے میٹنگ کرے گا۔ کوئٹہ کی عدالت نے عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، جوڈیشل مجسٹریٹ اول کا حکم۔ عمران خان 3 مختلف کیسز میں طلبی کے باوجود کسی بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ لیگی رہنما محسن شاہ نواز حملہ کیس میں ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ عدالت نے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اقدام قتل کیس میں سماعت کے دوران انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ریمارکس دیے، عدالت ضمانت خارج کر بھی دے تو عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ کوئٹہ جوڈیشل مجسٹریٹ اول کی عدالت نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عمران خان پر اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا مقدمہ بجلی روڈ تھانے میں درج ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے دوران لیگی رہنما محسن شاہ نواز پر مبینہ حملے پر اقدام قتل کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 21 مارچ تک توسیع کرتے ہوئے آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالتی استفسار پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ عمران خان ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے۔
जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं होते तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अदालत ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। करार दिया कि वीडियो लिंक के हवाले से वजारत कानून बताएगी। इमरान खान के खिलाफ थाना संजानी में इक़दाम कत्ल के केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत 21 मार्च तक तोसी कर दी। दौरान समाअत जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में दीगर मुलजमान को मौका नहीं मिलता। अदालत जमानत खारिज कर दे भी तो इमरान खान को गिरफ्तार तो आप भी नहीं करते। खातून जज को धमकी देने के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जो अदालत ने मंजूर करते हुए केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, लाहौर में एहतजाज के दौरान जाम बहक पीटीआई के कारकुन अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अली बिलाल पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई। अली बिलाल की मौत दिमाग में गहरी ज़रब आने के बाद ज़्यादा खून बहने से हुई। जिगर और लबलबा में खून जमा होना भी मौत की वजह बना। अली बिलाल की खोपड़ी का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ था। इमरान खान के खिलाड़ी अली बिलाल को किसने मारा? गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई। मुतनाज़ बयानात से मामला मशकूक होने लगा। अली बिलाल को मुर्दा हालत में अस्पताल लाने वालों की तस्वीर सामने आ गई। काली गाड़ी में सवार 2 अफराद बिलाल को अस्पताल लाए। एमरजेंसी के बाहर एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर डालकर दोनों बिलाल को अंदर ले गए, जिसके बाद दोनों ही फरार हो गए। कारकुन की मौत, पुलिस एहलकारों पर हमले और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। इमरान खान, फवाद चौधरी समेत पीटीआई के मरकजी रहनुमा और कारकुन नामजद। पीटीआई की दरख्वास्त पर भी FIR कट गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, निगरान वजीर आला, CCPO लाहौर समेत दीगर के नाम शामिल। खिलाड़ी इमरान का, सपोर्टर कप्तान का सियासी वाबस्तगी निभाते ही जिंदगी से हाथ धो बैठा। कई दिन जमान पाक रुका, अपने कायद से मुलाकात का ख्वाह रहा, मुलाकात नहीं हुई, मौत का बुलावा आ गया। मामला है मशकूक, बल्कि बहुत ही मशकूक। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अली बिलाल हादसे का शिकार हुआ, मगर हुकूमती मशीनरी ने कुछ और ही इशारे दे दिए। ईदी सर्विसेज और रेस्क्यू एहलकारों ने कुछ और ही कहानी सुना दी। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अली बिलाल के सर और नाक पर चोट लगी हुई थी। मौत का तयन डॉक्टरों का पैनल ही करेगा। इसी दौरान सर्विसेज अस्पताल ओहदे से हटा दिए गए। डॉक्टर मुख्तार अली ने बिलाल को मुर्दा हालत में वसूल किए जाने का मामला करार दिया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई, मामला कुछ ऐसा उलझा कि कुछ भी ना सुलझा। पीटीआई कारकुन को अस्पताल लाने वाले अफराद कौन थे? स्याह रंग की गाड़ी किसकी थी आखिर? 2 अफराद बिलाल को अस्पताल छोड़कर कहां फरार हो गए? मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। टीम ने 50 के करीब वीडियोस हासिल कर ली और खोज में मसरूफ हो गई। उधर बदकिस्मत सपोर्टर आहू और सिस्कियों में सबूरत खाक कर दिया गया। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना। पाक फौज की हिफायतशियारी पॉलिसी पर आवाम के शाना बशाना। परेड रवायती अंदाज में शक्कर पड़ियाँ के बजाय ऐवान सदर में मुंतखब हो गई। ज़राए के मुताबिक मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र पाक अफवाज का अखराजात बचाने के लिए मुसल्लह अफवाज के रवायती परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला हुआ है और परेड रवायती अंदाज में शक्कर पड़ियाँ के बजाय ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। रवायती परेड पर बड़े पैमाने पर अखराजात होते थे। पाक फौज मुल्क के मुश्किल वक्त में पूरी कौम के साथ खड़ी है। मुल्क की तरक्की में पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने गवादर का दौरा किया। CPEC के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुकामी इमायदीन से मुलाकात भी की। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के अवाम की भलाई के लिए पेशावराना अज़म के साथ काम जारी रखने पर जोर दिया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने फोर्सेज का शुमाली वज़ीरिस्तान दत्ता खेल में दौरान ऑपरेशन मजीद 3 दहशतगर्द मार दिए, जिसके बाद हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई। मुट्ठी भर गुमराह नासिर बलोचिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ का दौरा गवादर CPEC पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और CPEC सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने तमाम रैंक्स की कोशिशों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन, मुंतखब नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद से बातचीत की। तालीम, सोलर सिस्टम की तनसीब, माहीगीरी, पानी, सेहत, खेल और मौज से मुतालिक फलाही मंसूबों का ऐलान किया। उधर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक जारी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई। 6 दहशतगर्द गुज़िश्ता रोज मारे गए थे।
सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशन की मंजूरी। सूबाई काबीना ने लुटेरों के खिलाफ मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। पुलिस को मिलिट्री ग्रेड का असलहा फराहम करने की मंजूरी भी दे दी गई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेगी। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक काबीना ने असलहा खरीदने की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत असलहे की खरीदारी के लिए वजारत दाखिला से NOC लेगी। ऑपरेशन में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी शामिल होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ये एक मुश्तरका और प्री प्लान ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन IG सिंध अपनी मनसूबा बंदी से शुरू करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सिंध काबीना ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3264 असामियों को अपग्रेड करने और कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड बंद करने की मंजूरी दे दी। शफकत अजीज, न्यू न्यूज़, कराची। हुकूमती अदम तवज्जी और बल्दियाती निज़ाम के फ़ाल ना होने के बायस शहर क़ायद की हालत अबतर है। ऐसे में बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने अपने तौर पर इलाके में मसाइल के हल के लिए काम का सिलसिला शुरू कर दिया, मगर ज़िली इंतज़ामिया ने मुंतखब नुमाइंदों को खिदमात अंजाम देने से रोक दिया है। हमाद यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। टूटी फूटी सड़कें और कचरे के ढेर, सिंध हुकूमत की लापरवाही और बल्दियाती इंतखाबात होने के बावजूद इख्तियारात नुमाइंदों को मुंतकिल न करने के बाइस शहरी रुल गए। शहर में बरसों से रुके तामीर और तरक्की के अमल ने रोशनियों के शहर को बदहाल कर दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए अपनी जीत के नोटिफिकेशन और इख्तियारात के मुंतकिल के मुंतजिर नए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने तौर पर ही इलाके में काम शुरू किया, तो इनका मशकूर होने के बजाय ज़िला इंतज़ामिया ने उन्हें काम से ही रोक दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सिफारिश पर जो उन्होंने पीस पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को की थी, उनके कहने पर एक लगाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब जिनका नाम है शकील साहब। वो उन्होंने बाकायदा अपने तमाम यानी स्टाफ को हिदायत दी हुई है कि इन मुंतखब अफराद का कोई काम ना किया जाए। खिजर बाकी का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट सियासी जमात नुमाइंदे के बजाय सरकारी अफसर बनकर अवाम की खिदमत करें। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ अहमद यूसुफ, न्यू न्यूज़, कराची। बुलेटिन में अब कुछ शामिल करें जराइम की दुनिया से खबरें, तो आपको बताएं कि न्यू कराची में डाकुओं के घर के बाहर बैठे शहरियों से लूटमार। शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी हालत में फरार हो गए। CCTV फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यू कराची में डाकुओं की घर के बाहर बैठे शहरियों से लूटमार। शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी हालत में फरार हो गए। CCTV फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में CIA, सिविल लाइन्स और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। साबिका रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग के 2 इश्तिहारी डाकू हलाक। दूसरे साथी डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने हरबंसपुरा में रेड किया। मुलजिमों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। दोनों इश्तिहारी अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि जहानिया में दुकानदार को लूटने की कोशिश करने वाले 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। नवाही इलाके अड्डा पुल 14 पर वारदात की कोशिश में शहरियों के तशद्दुद से ज़ख्मी होने वाले डाकुओं की शनाख्त आसिफ और राशिद के नाम से कर ली गई। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू रिकॉर्ड याफ्ता हैं और कई मुकदमात में मतलूब थे। अलीपुर शर्किया में गुर्बत से तंग बाप ने 4 साला बेटी समेत नहर में छलांग लगा दी। बाप और मासूम बेटी दोनों जान बहक हो गए। बदकिस्मत बाप ने बेटी को अपने जिस्म के साथ बांध रखा था। मोहम्मद सलीम ने शनाख्ती कार्ड समेत कुछ चीज़ें बाहर रखकर अचानक नहर में छलांग लगा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अलमनाक वाक़या इतना अचानक हुआ कि बचाने का मौका ही नहीं मिला। दोनों की डेड बॉडीज़ अभी तक नहीं मिली। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला करते हुए नैब कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हज पॉलिसी 2023 की मंजूरी भी दी गई। रवां साल हज पर 1,79,210 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास, चेयरमैन नैब को मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला और तरामीम की मंजूरी। एहतसाब अदालत से नाकाबिल समाअत करार दिए मुकदमात चेयरमैन नैब किसी दीगर मुतलका फोरम को भेज सकेंगे और केस का जायजा लेकर मुकदमा बंद करने की मंजूरी भी दे सकेंगे। वफाकी कबीना ने हज पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी। रवां साल शुमाली पाकिस्तान के आज़मीन के लिए हज अखराजात 11,75,000 रुपए होंगे, जबकि जनूबी पाकिस्तान के आज़मीन के लिए हज अखराजात 11,65,000 रुपए होंगे। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की
जानिब से नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी पर ब्रीफिंग में बताया गया। साल 2019 में फिजाई आलूदगी से 2,35,000 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसने पाकिस्तान में जिंदगी का दौरानिया कम कर दिया है। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी मुल्क में फिजाई आलूदगी को कम करने के इकदामात में मावन साबित होगी, जिसके तहत नेशनल एक्शन कमेटी तश्कील दी जाएगी। कराची के अवाम के लिए बुरी खबर, विफाकी हुकूमत ने कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली महंगी कर दी। विफाकी काबीना ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 76 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक बिजली 2 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट के मद में महंगी करने की मंजूरी दी गई है। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास नीलम जहलम मनसूबा मुकम्मल होने के बावजूद बिजली सारिफिन से 9 अरब रुपये इजाफे वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट हुकाम ने बताया कि नीलम जहलम मनसूबा मुकम्मल होने के बावजूद बिजली सारिफिन से अरबों रुपये वसूल किए गए। कमेटी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए नीलम जहलम सरचार्ज फौरी सारिफिन को वापस करने का हुक्म दे दिया। और अब आपको बताएं कि डॉलर की फिर उड़ान। इंटरबैंक में 3 रुपये 18 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 226 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 400 रुपये बढ़कर 1,97,700 रुपये हो गई। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 3 रुपये 18 पैसे महंगा हुआ, जो 279 से बढ़कर 282 पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 284 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में मिला जुला रुझान रहा। मार्केट 226 पॉइंट के इजाफे से 41,585 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 342 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 214 कंपनियों के शेयर की कीमतों में जबकि 108 के शेयर्स में कमी हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 41,648 जबकि कम तरीन सतह 41,358 रही। सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 1,97,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,69,486 रुपए हो गई। राजा कामरान, न्यूज़ कराची। गवादर में दफा 144 के निफाज के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने हक दो तहरीक की रैली में शिरकत की। रैली के शुरका ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त किया। रैली के शुरका के क्या मुतालबात हैं, तफसीलात अजीज मरी की रिपोर्ट में देखिए। गवादर शहर में हक दो तहरीक के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली। दफा 144 के नफाज के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने शहर के मुख्तलिफ शाहराहों का गश्त किया। अपने मुतालबात की हक में नहरेबाजी भी की। 26 दिसंबर को हक दो तहरीक पर क्रैक डाउन और उसके रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बड़ी रैली है। अजीज मरी, न्यूज़ कोयटा। और अब आपको बताएं कि शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए। चीन की पार्लियामेंट एनपीसी के 3000 अरकान ने शी जिनपिंग को वोट दिया। शी जिनपिंग माओजे के बाद सबसे ताकतवर रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। अब कुछ बात करें पीएसएल 8 की। नाजरीन, पीएसएल में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाआसानी 119 रन से मात दे दी। 227 रन के ताकुब में इस्लामाबाद की टीम सिर्फ 107 रन पर ही ढेर हो गई। फखर जमान की सेंचुरी बनाने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेहरा की हसीन वादी शोगरा में 8000 फीट की बुलंदी पर स्नो जीप रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 20 से ज्यादा जीप रेसर्स ने हिस्सा लिया और बर्फीले ट्रैक पर महारत का मुजाहरा किया। अकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। दूसरी जानिब जंग में जश्न बहारा के मौके पर ऑल पाकिस्तान आर्चरी वीमेन चैंपियनशिप का मेला सजा, जिसमें चारों सूबों से खिलाड़ियों ने शिरकत करने पहुंच गए हैं और तीर अंदाजी के जौहर दिखाए। जंग से सफदर वसीम की रिपोर्ट देखिए। जश्न बहारा की आमद। जंग के शफकत शहीद ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स की जानिब से खवातीन के लिए तीर अंदाजी के मुकाबले। चैंपियनशिप का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ने फीता काट कर किया। आर्चरी चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से 13 टीमों के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की और तीरों के खूब निशाने लगाए। मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि इस तरीके से और इवेंट होने चाहिए और बाकी सारी जगहों पे भी। इस वक्त मैं कराची से यहाँ पर आई हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके के एनवायरनमेंट में खेल के। हर एक को आगे बढ़ना चाहिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसे इवेंट होते रहेंगे तो हमारी जो न्यू जनरेशन आएगी उनको भी मौका मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था जश्न बहारा के मौके पर खेलों की खुसूसी सरगर्मियाँ रखी गई हैं ताकि खिलाड़ी सलाहियतों के जौहर दिखा सकें। ये टूर्नामेंट 2 दिन तक जाएगा और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसकी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को
اور ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر کو, سارے مہمانوں کو جو پورے پاکستان سے آئے ہیں, سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ اسپورٹس کی جانب سے مہمان خصوصی کو شیلڈ دی گئی. چیمپئن شپ کے مقابلے 2 روز جاری رہیں گے, جس میں خواتین کھلاڑی فن کے جوہر دکھائیں گی. کیمرامین محمود الحسن اسامہ کے ساتھ صفدر وسیم, نیو نیوز, جھنگ. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے آرٹ کونسل میں سندھی تہذیب فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. فیسٹیول کے مہمان خصوصی معروف قانون دان اعتزاز احسن نے پروگرام کے انعقاد پر آرٹ کونسل انتظامیہ کی کاوش کو خوب سراہا. فیصل آباد سے جویریہ نذیر کی رپورٹ دیکھیے. رنگوں اور خوشبوؤں سے مہکتی سندھی ثقافت بارے آگاہی کے لیے فیصل آباد کے آرٹ کونسل میں سندھی کلچر کی مناسبت سے تقریب سجائی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی اعتزاز احسن نے پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کیا. پاکستان کی ثقافت کو اس طرح اجاگر کر رہے ہیں اور تاریخ کو ہمارے سامنے تصویروں میں اور مورتیوں میں اور آثار قدیمہ کی صورت میں ہمارے سامنے لا رہے ہیں. ڈول کی تھاپ پر رقص پیش کر کے جوانوں نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے. فیسٹیول میں سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سٹالز بھی سجائے گئے. بیسیکلی یہ فیسٹیول ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ مطلب جو ہماری سندھ کی تہذیب تھی کتنی پرانی ہے اور اس میں کون کون سی ثقافت تھی. پروگرام کے شرکا نے سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے آرٹ کونسل کے اس اقدام کو قابل تحسین قرار دیا. کیمرامین آصف نواب کے ساتھ جویریہ نذیر, نیو, فیصل آباد. برطانوی راج کے دوران سکھوں سے لڑتے ہوئے مارے جانے والے سپاہیوں کی یاد میں جگہ جگہ میموریل بنائے گئے ہیں. ایسی ہی ایک یادگار اسلام آباد کے گاؤں ریہاڑ میں بھی موجود ہے, جو گاؤں میں ان جنگوں کی تاریخ کا پتہ دے رہی ہے. جانتے ہیں آمنہ جنجوا کی رپورٹ میں. اسلام آباد کے قدیمی گاؤں ریہاڑ میں اینگلو سکھ جنگوں کے نشانات آج بھی باقی ہیں. جنگوں میں مارے جانے والے سپاہیوں کی یاد میں انگریز یادگاریں بناتے تھے. ایسا ہی ایک برٹش مونومنٹ اسلام آباد میں آج بھی موجود ہے. مینار کی اونچائی تقریباً 2 میٹر ہے, جبکہ اسے سینڈ سٹون تراش کر بنایا گیا. برٹش مونومنٹ کی یہاں موجودگی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ماضی میں اس گاؤں میں بھی سکھوں اور برطانوی فوج کی جنگیں ہوئیں. مونومنٹ کب تعمیر ہوا اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی, لیکن ماہر آثار قدیمہ محمود الحسن کہتے ہیں برٹش مونومنٹ اس وقت خستہ حالت میں ہے. بدقسمتی سے اس کے اوپر جو پلیک لگی ہوئی تھی جس کے اوپر ان آفیسرز کے نام تھے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر گم ہو گئی. مینار کی مرمت اور اسے محفوظ کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ اقدامات کر رہا ہے. تاریخی واقعات کو اگر اس عمارت سے جوڑا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مینار تقریباً 300 سال پرانا ہوگا. اگر حکومت ان کو محفوظ رکھے تو یہ تاریخی نشانیاں نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بن سکتی ہیں. کیمرامین راجہ عباد کے ساتھ آمنہ جنجوا, نیو نیوز, اسلام آباد. راولپنڈی کے راجہ بازار میں ضروریات زندگی کی بہت سی چیزیں دستیاب ہیں اور گہما گہمی ہر وقت عروج پر ہوتی ہے. اس تاریخی بازار پر دیکھتے ہیں عائشہ شعیب کی اس رپورٹ میں. راجہ بازار راولپنڈی کا سب سے پرانا اور قدیمی تجارتی مرکز. 1928 میں یہ بازار قائم ہوا. قیام پاکستان سے قبل راجہ بازار کی تجارت ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ میں تھی. اس بازار سے آزاد کشمیر اور پورے شمالی پاکستان کو سامان بھیجا جاتا ہے. لوگ دور دراز علاقوں سے خریداری کو بھی آتے ہیں. 94 سال گزرنے کے باوجود بھی بازار کی رونقیں برقرار ہیں. بہت ہی پرانا بازار ہے ماشاءاللہ. ہر قسم کی مطلب ادھر چیزیں ہر قسم کی سستی, باقی شہر سے سستی ملتی ہے. کشمیری بازار, امپیریل مارکیٹ, کلا بازار, یہ تمام راستے راجہ بازار سے منسلک ہیں. یہاں کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ جس نے راجہ بازار نہیں دیکھا اس نے پنڈی نہیں دیکھا. دور دراز سے بھی یہاں سے آتے ہیں, باہر کے پیریفیز لوگ آتے ہیں, ایون کہ دوسری فیملیز کے بھی آتے ہیں, باہر کے نہیں, لوکل لوگ بھی کافی ہیں یہاں پر بازار میں, اس کشمیری بازار میں آتے ہیں. راجہ بازار میں مرکزی فوارہ چوک بھی موجود ہے جہاں پہلے وقتوں میں تانگا سٹینڈ ہوا کرتا تھا. راجہ بازار میں وہی تاریخی عمارات, وہی تجارتی داؤ پیچ, وہی بھاؤ تاؤ, سب کچھ جدید انداز میں ویسا ہی ہے جیسا 94 سال پہلے موجود تھا. کیمرامین جاوید اسلم کے ساتھ عائشہ شعیب, نیو نیوز, راولپنڈی.
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीवरेज का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए अज़ाब बन गया। गटरों से उबलता पानी और टूटी सड़कें इंतज़ामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत पेश करने लगी। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। कराची का गुलशन इकबाल 13D का अख्तर सहबा रोड, जहां तरक्याती काम के अलावा सीवरेज का नाकिस निज़ाम और खस्ता हाल टूटी सड़कें, इन्हीं दुश्वार गुजार रास्तों पर रोज़ाना सफ़र करने वाले शहरी बेहतरी की आस लगाते लगाते क्या थक चुके हैं या अभी भी उम्मीद बाकी है, ये जानते हैं इन्हीं से। कई महीनों से जारी तरक्याती काम जो मुकम्मल ही नहीं होते। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। स्कूलों भी यहाँ बच्चे छोटे छोटे ये परेशान हो रहे हैं कि कोई लेने नहीं आ रहा है, अगर लेने आ रहा है तो वो घंटों घंटों यहाँ लग जाते हैं। सीवरेज का भी मसला है यहाँ पे, हमेशा पानी ही खड़ा रहता है यहाँ पे। और आगे गली है, वहाँ भी सारा आप देखो खराब किया हुआ है। सैलाब और दरिया का मंजर पेश करती है ये जगह, और जिस वक्त लोग निकलते हैं तो सारा नमाजियों के कपड़ों का बर्बादा होता है और उसका अजाब माशाल्लाह इनके सर जाता है। कराची के बासियों की हुकूमत और शहरी इंतजामिया से बेहतरी की उम्मीद अब खत्म होने लगी है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। बलूचिस्तान में वाक़े तारीखी मच जेल में कैदियों को हुनरमंद बनाया जाता है ताकि वो जेल से निकलने के बाद कार आमद शहरी बन सकें। मच जेल में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तफसीलात के साथ कोयटा से अजीज़ मरी। बशिया मच जेल में कैदियों की बनाई हुई हैं। कोयटा में इन नशिया को फरोख्त करने वाले फजलदीन भी मच जेल में कैद काट चुके हैं। मच जेल में कैदियों को कारामद शहरी बनाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। चीजें हम लोग इधर कोयटा में भी लोग लाते हैं, जो जिन लोगों ने जेल काटा है वो इधर आके घरों में भी सिखाया, घरों वाले भी बनाते हैं, लाते हैं। लोग इन नशिया की क्वालिटी और मयार को खूब सराहते हैं। मैं ये चीजें खरीदने आया हूँ, ये आज से बनती है चीज मुझे बहुत पसंद है। लोगों ने हुकूमत से अपील की कि वो नशिया की बैरून मुल्क मार्केटिंग के लिए इकदाम करे। कैमरामैन नासिम बल्लोच के साथ अजीज मरी, नियो, कोयटा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। सिर्फ 2 रोज़ में इसराइली जारियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी नौजवानों की तादाद 10 हो गई, जबकि 5 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी मुसलसल चौथे रोज़ जारी है। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में जनीन पनागज़ीनों पर एक बार फिर चढ़ाई की और एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मज़ीद 3 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए, जबकि 2 रोज़ कबल ज़ख्मी होने वाला नौजवान भी आज चल बसा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।